میں آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، فقیر آپ کو آداب کرنا چاہتا ہے۔ بہت دنوں بعد میں غازی آباد آیا۔ پہلی بار میں آیا تو بالکل جوان تھا، دوسری بار آپ لوگوں سے جنتی میں ملاقات ہو تو ظاہر بڑھاپا بیماریاں سے کچھ ہیں۔ ایک ساتھ ہمارا تھا جس کے لیے ہم مشہور بھی ہیں، پہلے 2-3 شعر سنایا آپ کو، پھر میرے چہرے پہ یہاں سے میں نہیں چھوڑا ہے، فقیروں کی یہ بس فراوانی کہتے ہیں، بہت زیادہ ہونا، فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، فقیروں کی یہ بستی ہے، سنتوں کی سادھوؤں کی، فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ فقیروں کی یہ بستی ہے، فراوانی نہیں ہوگی، مگر جب تک رہو گے ہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوتی، میں اب آنگن میں سو جاتا ہوں، کمرے میں نہیں سوتا، میرے بچوں کو اب اتنی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہ شعر اہالیان غازی آباد کی نظر ہے کہ یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی، یہ آنسو آپ کو رسوا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے پالے ہوئے ہیں ان سے نادانی نہیں ہوگی۔ منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی ہے، منور میں یقیناً کچھ نہ کچھ تو خوبیاں ہوں گی، یہ دنیا یوں ہی اس پاگل کی دیوانی ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ بہت جب میں نے شروع میں شاعری شروع کی تھی تو ہمارے جو کلکتے میں جہاں ہم پڑھتے تھے امیش چندر کالج میں، تو ہمارے اکثر ہمارے وجیندر بھائی بیٹھے ہیں جو ہمارے عہد میں غزل کی آبرو کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہاں ہمارے وگیان بھائی بیٹھے ہیں، چھوٹی بہر میں شاید نوح ناروی ایک شاعر ہوا کرتے تھے جو آسان اور چھوٹی بہر میں غزل کہنے کے لیے داغ دہلوی کے شاگرد سے مشہور تھے، بہت وہ آسان شعر کہتے تھے، یعنی اس سے بھی آسان جتنے وگیان بھائی کہتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک شعر تھا کہ جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے، جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سیل ممتنع میں اور چھوٹی بہر میں شعر کہتے تھے۔ بہرحال تو بات کہاں کی کرتے ہوں، ہمارے ایک واقعہ اور سنا دیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو جو کالج میں ایک دن ہمارے یہاں فاضل خان بیخود تھے، پروفیسر، وہ غالب پڑھا رہے تھے کلاس میں، غالب پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے غالب کا ایک شعر پڑھا کہ نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، نیند اس کی ہے، دماغ اس کا ہے، راتیں اس کی، جس کے شانے پر تیری زلفیں پریشان ہو گئیں۔ ایک لڑکا ہمارا دوست پڑا ہوا خالد نام تھا، کہنے کا سر معاف کیجئے گا، بڑا گھناؤنا معلوم ہوتا ہے، محبوبہ کی زلفیں، محبوب کا کندھا، اس میں جوئیں بھی تو ہو سکتی ہیں۔
राहत अली खान का खुद ने कहा सिट डाउन, मैं यहाँ तुम्हारी महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यही है कि जैसा विजेंद्र भाई ने भी कहा कि हम पे बुढ़ापा नहीं आता है, तो ये सही बात है। आज भी अगर कोई अच्छा पैगाम आ जाए, चाहे इनको की तरह नाम बदलना पड़े, लेकिन ये कर लेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, मैंने आपको हंसाया इसलिए कि कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते रोने लगता हूँ, तो आप इसके लिए भी तैयार रहें। तो ये अर्ज कर रहा था कि वो हमारे बंगाली दोस्त अक्सर कहते थे, यार ये तुम्हारी उर्दू गजल जो है, इसकी एक खराबी ये है कि जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेजों से पंजे लड़ा रहा था, तो तुम्हारी उर्दू गजल वेश्या के कोठे से उतर रही थी। ये बात मुझे भी लगती है, यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हुस्न इश्क हो गया है, बहुत ज़्यादा आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू, पूरी गजल जो है वो कच्चे गोश की दुकान हो गई। हमने कहा इसे हमें बदलना चाहिए। मैंने सोचा जब एक मामूली सूरज शक्ल की औरत हमारी महबूबा हो सकती है, तो हमारी माँ हमारी महबूबा क्यों नहीं हो सकती? और मैंने उसी वक्त ये पीड़ा उठाया जब मैंने शेर कहना चाहा था, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे अग्रज थे, हमारे अकाबरीन थे, उनका गजल के माने तो महबूब से बातें करना है, इसमें माँ कहाँ आ जाती है? तो हमने कहा अगर तुलसीदास के महबूब भगवान राम हो सकते हैं, तो मेरी महबूब मेरी माँ। और मुझे ये खुशी है कि हमारे सब बुजुर्ग, हमारे अग्रज बैठे हुए हैं कि आज हिंदुस्तान में किसी जबान में अगर गजल लिखी जाती है, तो उसमें मुनव्वराना की ये मामूली सी कोशिश है कि गजल से हुस्न इश्क के साथ साथ माँ, बहन, रिश्ते भी आ गए। तो इसकी तवहीद शायद मुझे मेरी माँ से ही मिली थी पिछले। तो जब तक माँ रहती है या बाप रहते हैं, तो लगता नहीं कि ये चले जाएंगे। अभी पिछले 5 महीने पहले मेरी वालदा भी चली गई अम्मा। मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि उससे 7-8 महीने पहले हमारा कैंसर का ये ऑपरेशन हुआ था। ये पहले कलकत्ता ले जाए गए, वहाँ हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया कि लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं, बोझ उठा नहीं पाएंगे। मुंबई में बीच कैंडी में एडमिट किए गए, ओटी से बाहर निकाल दिए गए कि साहब वो किडनी जो है फट जाएंगी। 3.5-4 घंटे के ऑपरेशन में फिर मुझे हिंदुजा हॉस्पिटल में ले जाया गया। 7-8 दिन तक कोशिश होती रही। अचानक मैंने एक दिन डॉक्टर सुल्तान प्रधान से, उनके साथ जो डॉक्टर थे चेस्ट वाले, लंग्स वाले, मैंने उनसे कहा डॉक्टर कल अगर आप मेरा ऑपरेशन कर दीजिए कुछ होगा नहीं। तो उसने पूछा डॉक्टर कि आर यू डॉक्टर? मैंने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ का बेटा हूँ। कल मदर्स डे है, मेरी माँ का डॉक्टर ने बहुत अखबारात में, मीडिया में सब था, लोग मोहब्बत करने वाले सब इस तरह से परेशान थे। डॉक्टर ने काटा, उसने कहा इसको बहुत दूर से काटते हैं, लेकिन हमें लगा यही तक है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हर अखबारों ने भी यही लिखा, डॉक्टर ने भी मुबारकबाद दी, सबने का ऑपरेशन कामयाब हो गया। लेकिन मुझे शक था कि कहीं ना कहीं मैं हार गया महाराज। कहीं मुझे ये शक हुआ कि दुनिया समझ रही कि मुनव्वराना ने कैंसर को हरा दिया, ऐसा हुआ नहीं। अब एक वाकया मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यमदूत यानी मलकुल मौत एक घर पे गए और उसका दरवाजा कुंडी खटखटाई, अंदर से एक साहब निकले, तो उससे पूछा कि तेरी माँ है घर पे? मैं यमदूत हूँ, उसकी जान निकालने के लिए आया। उसने कहा हाँ माँ तो मेरी मौजूद है, लेकिन यमदूत या मलकुल मौत ऐसा कर लो कि इस बार कुछ तरीका बदल दो, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे ले चलो। यमदूत ने कहा सौदा तो अच्छा तू कर रहा है, लेकिन तुझसे पहले ये सौदा तेरी माँ ने मुझसे कर दिया।
مجھے یہ لگا کہ کہیں نہ کہیں سے ایسا ہو گیا، اور وہی ہوا بھی کہ 5-6 مہینے 4 مہینے اور رہی ہوں، ٹھیک ٹھاک تھی بالکل، ہنستے بولتے مگر وہ چلی گئی۔ تو ابھی تک یعنی ایک طرح سے آپ کی جیسے مجھے مشاعرے سے بہت کم دلچسپی ہے۔ ہم نے ان سے ایک بار یہ کہا تھا جب وہ برابر بیمار رہتی تھی، دیکھیے جلدی مت کیجیے، میں پہلوٹی کی اولاد ہوں، پیچھے آ جاؤں گا اور لیٹ کے سو جاؤں گا، ڈانٹتے ہیں ایسا ایسا، لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے اس کے بعد جینا کچھ لطف نہیں ہے۔ میں نے شعر ایک تو میں نے کہے تھے کہ ماں کے فوراً انتقال کے بعد سماپت کروا لیں کہ پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، اب ہوا مجھ کو جگاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ پہلے یہ کام اب اٹھ جا بھیا اٹھ جا اللہ اٹھ جا، پہلے یہ کام سلیقے سے، پہلے یہ کام بڑے پیار سے ماں کرتی تھی، اب ہوا مجھ کو جگاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ ہر شخص ہم سے بھی یہی پوچھتا ہے، دنیا یہی پوچھتی ہے شاید، اماں کی عمر کتنی تھی، کئی برس کی ہو گئی نہیں اماں۔ شعر میں نے یہ کہا کہ عمر ماں کی کبھی بیٹے سے نہ پوچھی جائے، ماں تو جب چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ عمر ماں سے کبھی بیٹوں کی، عمر ماں کی کبھی بیٹے سے نہ پوچھی جائے، ماں تو جب چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ جب میں بیمار تھا جن دنوں تو ہمیں دیکھنے کے لیے آئی اماں، کہنے لگی کم وقت کو بچپن میں جب ایک سوئی بھی لگتی تھی تو ان کی خالہ کو پکڑا دیتے تھے، ہم اندر چھپ جاتے تھے جا کر کے، کیسا ڈاکٹروں نے ہمارے لڑکے کو گوٹ ڈالا ہے یہ۔ تو میں یہ سوچتا تھا مہاراج کی میں نے کوئی ایسا بڑا پن نہیں کیا، کنویں نہیں بنوائے، تالاب نہیں کھدوایا، پوجا پاٹ نہیں کی، نمازیں نہیں پڑھی، کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ یہ 60-62 برس کی عمر ایسے ہی گزر گئی۔ پھر اچانک مجھے اوپر والے نے 4 لائنیں لکھنے کی توفیق دی۔ 4 لائنیں داور حشر کہتے ہیں اوپر والا۔ 4 لائنیں یہ تھی کہ داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، داور حشر تجھے میری عبادت کی قسم، یہ تیرا نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا۔ یہ جہاں سے یاد آ رہا ہے پہلے میں سنا دوں آپ کو کہ بڑا مشکل کام تھا کہ جب شبد کوش جتنے ہیں ہندی کے شبد کوش ہوں، اردو کے شبد کوش، سب جگہ اس کی لکھا ہے غزل کے معنی محبوبہ سے بات کرنا، اور میں نے بتایا کہ محبوبہ کی کیفیت کیا تھی۔ مطلب میں نے یہ کہا کہ معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، معمولی ایک قلم سے کہاں تک گھسیٹ لائے، ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ معمولی ایک قلم سے کہاں تک ہم اس غزل کو کوٹھے سے ماں تک گھسیٹ لائے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے ضرور، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے، اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھولتی کر جان، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا۔ مسلسل گیسوؤں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی۔ جب میں پہلی بار میں نے کار خریدی فیٹ،
नई नई आई थी वो नया के लड्डू घेर वाली, मैंने ला के गाड़ी खड़ी की, कलकत्ते मंदिर में रहता था, तो फौरन बीवी बरामदे में आई, उन्होंने कार देखी, कहने ये रंग बहुत स्वीट है। अम्मा ने मुझे कम वक्त खाना खाया कि खाली उसी में लगा हुआ है। तो ये मुसलसल गेसुओं की बरहमी अच्छी नहीं होती, हवा सबके लिए ये मौसमी अच्छी नहीं होती, और मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी माँ के आगे यूं कभी, मुनव्वर माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी। मैं महाराज ये शेर आपकी खिदमत में खास तौर से करना चाहता हूँ कि कब वापसी का हुक्म हो, धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। तो इसमें एक शेर महाराज ये है कि हमारे जो मोहम्मद साहब थे, तो एक खजूर, सूखे हुए खजूर से टेक लगाकर उन लोगों से बातें करते थे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो मस्जिद बन गई, वो उसमें बैठने लगे। तो एक दिन कहा जाता है वो गुजर रहे थे, तो बाकायदा वो खजूर का पेड़ रो रहा था। तो मोहम्मद साहब ने खजूर के पेड़ से कहा कि तू परेशान मत हो, चल मैं तुझे जन्नत में लगा देता हूँ। लेकिन मैंने इसे नज्म किया है, गजल बनाया है। कब वापसी का हुक्म हो, धड़का भी लग गया, अब तो हमारी आंखों पे चश्मा भी लग गया। लाशऊरी का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। माँ लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का भी लग गया। शेर जहां से मैं इसके नाज उठाता हूं, सो ये ऐसा नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, सो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। मैं इसके नाज उठाता हूं, मैं इसके नाज उठाता हूं, सो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। खिलौनों की, ये मैं गाजियाबाद के पढ़े लिखे लोगों में शेर पढ़ रहा हूँ, देखिए। मैं इसके नाज उठाता हूँ तो ये ऐसा नहीं करती। ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती। खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? खिलौनों की दुकानों की तरफ से आप क्यों गुजरे? ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करता। ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं हुआ। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं। ये बंजर हो के भी बुज़दिल कभी पैदा नहीं करती। हेमंत करकरे ने आतंकियों से मुकाबला करते हुए बंबई में अपनी जान दे दी। उनकी विधवा श्री को हमारे इस वक्त के प्रधानमंत्री, उस वक्त के मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए से उनको इनाम देना चाहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। लेकिन मैंने इसे गजल बनाया कि शहीदों की ये बस्ती है, ये बच्चे की तमन्ना है, ये समझौता नहीं करती। शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं।
یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی. عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے. عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے. عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں. عجب دنیا ہے تتلی کے عجب دنیا ہے تتلی کے پروں کو نوچ لیتی ہے. عجب تتلی ہے پر نوچنے پہ بھی رویا نہیں کرتی. آئے وہ مہرے گداگر کہتے ہیں وہ چمبن جو فقیر کسی بچے کی پیشانی کو چھوتا ہے. ہماری پیشانی کی چمنی جو مارا ہے تو ہم بھی بڑے ہو جائیں. آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. آئے ہو تو ایک مہرے گداگر بھی لگا دو. اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو. اجداد کہتے ہیں پوروج اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو. اور ممکن ہے سننا بیٹا شیر, ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈیں. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. اور اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی. چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو. اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم. چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو. اور یہ بیٹا یہ شعر تمہارے لیے ہے. ابھی بتایا گیا کہ تم ماشاءاللہ تمہیں مس یونیورس رہی ہو. شعر میں نے بنایا. دنیا میں تقریباً 18 لاکھ ایئر ہوسٹس ہیں جہاز میں کام کرتی ہیں, مختلف طرح کے پائلٹ بھی ہیں, ایئر ہوسٹس تو ہیں گی. لیکن شاید یہ اردو غزل کی خوبصورتی ہے کہ میرے مقدر کو اس نے اس شعر سے سجا دیا. سنیے گا جناب, دیکھیے گا. بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. اس جنگ میں ہارے ہوئے کہلاؤ گے تم ہی. چاہو تو نمائش میں میرا سر بھی لگا دو. اور شعر یہ کیا اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی. اب صرف جہازوں میں سفر کرتی ہے پگلی. بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا. اب صرف جہازوں میں بچپن میں جو کہتی تھی میرے پر بھی لگا. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم شہنائی چھپاتی ہے. جو اس کی تہ میں جاتا ہے وہ پھر واپس نہیں آتا. سنیے صاحب, یہ خاص طور سے سر آپ کی نظر ہے آپ کے حوالے سے یہ شعر آج کی رات دینک جاگرن کے اس کامیاب مشاعرے سمیلن کی وجہ سے کہ سیاست کس ہنر مندی سے سچائی چھپاتی ہے کہ جیسے سسکیوں کا زخم کے زخم شہنائی چھپاتی ہے. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا. یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے.
जी चाहती है और कुछ दिनों खुश रखना। ये कपड़ों की मदद से अपनी लंबाई छुपाती है। बहुत वक्त भी बहुत हो रहा है। हाजिरनामा से कुछ एक शेर मैं चाहूंगा एक पूरा हिंदुस्तान है और कोई मुकाबला नहीं है हमारा। एक गजल का बाहर बारिश चल रही है इसलिए कहीं मत जाइएगा, गजलों की बरसात में भीगते रहना। नहीं, मैं कुछ शेर और सुना दूं। एक मुझे मुहाजिर नामा के मैं कुछ शेर मुझे हुक्म हुआ है, मैं सुना देता हूँ। और प्रदीप ने जिस शेर की वो कमाल की गजल है, वो बहुत हाजिरनामा से हाँ मैं सुना देता हूँ, वो 2-3 शेर भी सुना देता हूँ। प्लीज तशरीफ रखें आप। गजल का मतलब ये है कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये शेर आप हजरात की नजर है कि ये जो खुददारी कहते हैं स्वाभिमान। आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। ये जो खुददारी का ये नज्म, ये शेर महाराज आपकी खिदमत में है कि ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। शेर ये है कि दुश्मनी है, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे। दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारे ना, या ताल्लुक हो तो ऐसा पुकारे आ जाए। ये भी मुमकिन है, ये हमारे जो बच्चे बैठे हैं बेटे जैसे, छोटे भाइयों जैसे, शेर ये कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों। तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाए, तुम ठहर जाना जो रास्ते में। किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी, सुनना बेटा जी, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? जहां जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? जहां लड़की की इज्जत लूटना एक खेल बन जाए, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? कासा कहते हैं भिक्षा पात्र, वहां पर एक कबूतर तेरे चिट्ठी कौन बांधेगा? और ये बाजारे सियासत है, सुनिएगा जनाब, आप तो बराबर टीवी पर आप देखते रहते हैं। ये बाजारे सियासत है, यहां खुददारियां कैसी? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? ये बाजारे सियासत है, यहाँ ये बाजारे सियासत है, यहाँ खुददारियां कैसी? सभी के हाथ में कासा है, मुट्ठी कौन बांधेगा? और ये शेर यहाँ से वहां तक जो हमारे ये बेटे बेटियां बैठी हैं, उनकी नजर है कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं, तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़े जरूरी हैं। अगर हम ही
कौन? अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? अब वो हुक्म मुहाजिरनामा से पढ़ दें। मैं पढ़ देता हूँ। मुहाजिरनामा मेरी किताब है जो मैं एक मुशायरे में गया था पाकिस्तान, तो जो यहाँ से चले गए हैं वो वहाँ जाके पछताते हैं। तो नस्ल खत्म हो गई होती रहती थी, अभी भी कुछ लोग बचे हैं ऐसे, वो कहते हैं गलत किया, ये हुआ। कोई गाजियाबाद का वहाँ मिल जाए तो रात तक सब गाजियाबाद वालों को बुला लाएगा, ये गाजियाबाद का आया है। अब वो पूछेगा घंटा घर कैसा है, ये कैसा है, बिलखुआ कैसा है, सब अपने अपने इलाके की। तो मैं आपको वाकया बताना चाहता हूँ कि जो मिट्टी की मोहब्बत ही आदमी को बर्बाद कर देती है। पाकिस्तान बंद तो गया लेकिन आज तक बेचैन है। ये मिट्टी की मोहब्बत है। ये यहाँ मेरठ या मुजफ्फरनगर के पास से कोई गांव है, वहाँ तो वहाँ एक कोई पाकिस्तान से कोई साहब आए थे, उनकी कोठी थी वहाँ पुराने जमाने की हवेली, वो बिक गई थी। वो आए तो उन्होंने किसी से फरमाइश की कि हमको वो कोठी देखना है। तो वो किसी जाट ने खरीद ली थी। तो खैर उन्होंने जो साहब थे बासर से, उन्होंने जाके गुजारिश की कि भाई ये मालिक से देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देख लें। खैर वो गए और अपना हवेली देखी, उन लोगों से हाल चाल पूछा। एक खंबा था टूटा फूटा, उसे लिपट के बहुत रोते होते रहे, बहुत देर तक उसे लिपटते रहे, उसको चूमते चाटते रहे। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये लोग उतने अच्छे हाल में नहीं मालूम होते हैं, अगर ये इजाज़त दें तो हम 5 लाख रुपए दे सकते हैं कि इसको ठीक करवा लें। बिल्कुल। उन लोगों ने पूछा कि मरने वाले हैं, 80 के बेटे गए हैं, लखनऊ एक आखिरी ख्वाहिश। खैर उन्होंने कुछ पैसे दिए, उन्होंने मिला के ठीक है जो हो जाएगा। जब वो चलने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर इजाज़त हो तो इसमें से एक लखोरी हम निकाल लें, लिए जाए। ले लीजिए ये लखोरी, जो एक ईंट की छोटा सा बच्चा हुआ नहीं, देखा भी नहीं। वो लखोरी बहुत शान से ले गए पाकिस्तान, और उन्होंने अपने मालूम कि 3 करोड़ के ड्राइंग रूम में सजा दिया उसके साथ पर। लड़के कहते हैं पागल हो गए हैं, बताओ मैं हिंदुस्तान से घूमा ले करके आना है, यहाँ घूमा लिखा हुआ। लेकिन चूंकि बाप थे, उन्होंने समझाया कि नहीं बुरी बात है, 2-4 दिन के मेहमान है। जो वो मरने लगे अचानक, तो उनका दम नहीं निकल रहा था, बहुत तड़प रहे थे, सब लोग कोशिश कर रहे थे कि इनका दम निकल जाए। लोग वो भी सबसे माफी, जैसा होता है माफी मांगते हैं। तो किसी ने पूछा कि कोई ख्वाहिश है आपकी? कहेगा सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि इस लखोरी को मेरे साथ दफन कर देना, तो हम समझ गए हम हिंदुस्तान में दफन हैं। ये है मौजूद। मुझे वहाँ एक साहब मिले एक मुशायरे में, उन्होंने हमसे, हम लोग 3 लोग पढ़ने के लिए रह गए थे, हम, दीक्षित दनकौरी और वसीम साहब। मैं नीचे अपनी बुरी आदतों के हिसाब से उतरा सिगरेट विगरेट पीने के लिए, एक साहब मिल गए। उन्होंने कहा था परसों आपको हैदराबाद सिंध चलना है। मैंने कहा यार मेरे घुटने में तकलीफ है, 250 किलोमीटर हम कार में बैठ के नहीं आ पाए, सॉरी। अरे वो कहने साहब पिछले साल भी आप नहीं गए, ऐसा वैसा। वो बात करते 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 वो एक कहावत है हमारे एक दोस्त की शेर की एक लाइन है कि जरूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू बांध देती है। जरूरत आखिरी मंजिल पे घुंघरू बांध देती है। तो वो साहब हमसे कहेंगे राणा साहब देखिए यहाँ जितना पारिश्रमिक आपको मिल रहा है माल, इसके दुगना चौगुना 10 गुना हम आपको देंगे, लेकिन चलना तो पड़ेगा। मैंने कहा यार ये बहुत घटिया बात आपने कही। हमने कहा मैं एक तो आपका मेहमान हूँ, दूसरे मैं आपके पड़ोसी मुल्क से आया हूँ, तीसरे में आपकी बिरादरी यानी शायर अगर शायर की बोली लगाए, बाजार उसको बना दे,
फिर माफी मांगने लगे, मेरा माफ कर दी, माफ कर दी, माफ कर दी। लेकिन कहीं अंदर से मैं जागे हूँ, तो हमने सोचा ऐसे ही बहाने बना बना के खूबसूरत ख्वाब दिखा करके, ऐसे ही ख्वाब परेशान दिखा करके हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। तो पाकिस्तान बन गया था। उस जोश में हमारी बुआएं गई, तो हमारे फूफा लोग गए, तो उनके साथ बुआएं चली गई। दादी अपनी लड़कियों के इश्क में पहली बार ये हुआ कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, ये कहावत गलत हो गई। दादी भी चली गई, जाते टाइम दादा को भी लेके चली गई, चचा एक बच्चे थे उनको भी लेके चली गई, पहुंचा गया। मैंने आज भी मैं दैनिक जागरण में जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि मैं ये कहता हूँ, भगवान के तौर कहता हूँ, अगर खुदा मुझे थोड़ी देर के लिए भी दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बना दे, तो मैं पाकिस्तान के शहर कराची के कब्रिस्तान से अपने दादा और दादी की कब्रें नोच लाऊं और लाइब्रेरी 400 साल की हमारी खबरें तरतीब से लगी हुई है। मेरे बाप सो रहे हैं, दादा नहीं है पर दादा, ये मेरा भाई और मेरी माँ सभी सो रहे हैं। ये है तो अब तब मैंने ये मुहाजिरनामा कहा था, तो कुछ शेर मैं कर रहा हूँ। पूरी किताब बाद में वाणी प्रकाशन ने छापी, जो 3-4 लाख से ज्यादा भी की, कि मुहाजिर हैं, मुहाजिर कहते शरणार्थी है, मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए। अब चले तो गए यहाँ से महाराज, लेकिन अब वहां पछताते हैं। मुहाजिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। मुहाजिर है मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए। कई आंखें अभी तक ये शिकायत करती रहती हैं कि हम बहते हुए काजल का दरिया छोड़ आए हैं। शेर देखेंगे, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, शकर इस जिस्म से खिलवाड़ करना कैसे छोड़ेगी, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए, कि हम जामन के पेड़ों को अकेला छोड़ आए हैं। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है, ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए। ये खुदगर्जी का जज्बा आज तक हमको सताता है कि हम बेटे तो ले आए भतीजा छोड़ आए हैं। और हमारा हुनर पेंटिंग देखें कि भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको उमकता छोड़ा है। भतीजी अब सलीके से दुपट्टा ओढ़ती होगी, वही झूले में हम जिसको उमकता छोड़ आए हैं। हमारी अहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं सोना। हमारी अहलिया तो आ गई। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, सुनिए, हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ाए। हिमालय से निकलती हर नदी आवाज देती थी, मियाँ आओ वजू कर लो ये जुमला छोड़ाए हैं। वजू करने को, वजू जो हम लोग हाथ पैर धोते हैं नमाज के टाइम, वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ाए। वजू करने को जब भी बैठते हैं याद आता है कि हम जल्दी में जमुना का किनारा छोड़ाए हैं। वहां आसाइशें कम थी, सुनिएगा, वहां आसाइशें कम थी, सहूलतें वहां आसाइशें कम थी, तमन्नाएं ज्यादा थी। यहां पर तेल 9 मन है तो राधा छोड़। यहाँ पर तेल 9 मन है तो राधा छोड़ आए। शेर ये है कि हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ ताल्लुक था। जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए,
हमारी रिश्तेदारी तो नहीं थी, हाँ जो लक्ष्मी छोड़ आए हैं, जो दुर्गा छोड़ आए हैं, गले मिलती हुई नदियां गले मिलते हुए मजहब इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां गले मिलते हुए मजहब इलाहाबाद में कैसा नजारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहां से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गए या छोड़ आए हैं। तो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला, वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में थे कि उससे क्या कहा जाए। हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ा है। वो वहां एक आम है रटोल अनवर, तो वहां गए हम जब, तो वहां लोगों को शांतारी हमारे यहाँ का बहुत बड़ा बहुत मशहूर आम है। मैंने कही तुम्हारे यहाँ का क्या हुआ, न पेड़ न कुछ, यहाँ ला के खाली अनवर लगा दिया। तो हमारे यहाँ का रटोल है, हाँ वकील का नाम रखते रटोल। अच्छा कोई अनवर होंगे, वहां गए होंगे, अपने साथ पेड़ ले गए होंगे मोहब्बत में, तो अब वो वहां का सबसे इज्जतदार आम है। तो शेर मैंने बनाया, शायरी का मजा लें। परवाज़ भाई देखें, आप क्या देखें कि मुहाजिर हैं मगर हमें एक दुनिया छोड़ा है। किसी कमजोर को हम साथ में अपने नहीं लाए, किसी कमजोर को हम साथ में अपने नहीं लाए। रटोल अनवर तो ले आए हैं, लंगड़ा छोड़ा है। रटोल अनवर तो ले आए हैं, लंगड़ा छोड़ा है। इतना बड़ा पाकिस्तान है, ऐसा काफिया देखें इसमें। भदोही हमारा एक शहर है, यहाँ कारपेट बनती है, बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। बिछा देते यहाँ पर तो जमीन ढूंढे नहीं मिलती। भदोही में जो कालीनों का टीला बिछा देते यहाँ पर तो भदोही में जो कालीनों का टीला तू हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, तो हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है। हम अपनी झील में चांद उतरा छोड़ाए। हमसे चांद इतनी बेरुखी से बात करता है, हम अपनी झील में चांद उतरा छोड़ाए हैं। और शेर ये है कि ये दो कमरों का घर और ये गुजरती जिंदगी अपनी, वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ गए। वहां इतना बड़ा नौकर का कमरा छोड़ आए हैं। और शेर दो तीन इसमें गजल के रोमांटिक शेर है। वहां बहुत मतलब बताया ना, बड़ी लंबी लंबी सब। फिर ये हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए। हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे, हंसी आती है अपनी ही अदाकारी पे खुद हमको। बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए हैं। किसी की ऊन की तीली में, किसी बने फिरते हैं यूसुफ और जुलेखा छोड़ आए। और तभी आखिरी एक शेर, इसमें एक शेर ये है कि यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए। यहाँ आते हुए हर कीमती सामान ले आए, मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए। मगर
मगर इकबाल का लिखा तराना छोड़ आए हैं। और गजल का शेर आखिर में आगे मुझे याद है वो ये है, रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ रहे, जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया थे तो फिर हाकिम का कहना क्यों नहीं माना। जो हाकिम थे तो क्यों अपनी रियाया छोड़ आए हैं। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है